Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are healthy, fit and fine. Children, you have attended your online classes in previous session. Also due to COVID-19, you could not come to school. This session also we have started our online classes, our video classes, but I hope we will soon meet in school in our class. But till then we have to continue with our online classes only. I would request you to do attend your online classes regularly, watch the videos which are uploaded for you. अगर आप रेगुलरली वीडियोस देखेंगे, रेगुलरली ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपको अपने स्टडीज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. ऑफ कोर्स जो भी डाउट होगा, आई एम देयर फॉर यू टू क्लियर दैट इन योर ऑनलाइन क्लासेस. कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम. In my previous video, that was the first video of this session, I started chapter 1 of your EVS book. The name of your book is Think Green. I hope you all are having the books. If you are not having, do purchase them in time. The name of the book is Think Green. And I have already introduced the chapter 1, which is My Body. This chapter I have started in my previous video, the first video of the session. In today's video, I will continue the same chapter. Let's recap what we did in the previous video. Children, this topic, my body, it is related to definitely our body, parts of our body, the internal organs, the external organs, their functions, sense organs and their functions. All these we are going to study in this chapter. In my previous video, I have explained to you about our body. Our body is like a machine. Our body is like a machine. And like any big machine, has many parts. Our body also has many parts. जैसे किसी मशीन के पार्ट्स होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. And those parts are very essential, very important for us because they help us in doing our day-to-day work. जो भी हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में जो भी हम काम करते हैं, रनिंग, ईटिंग, डांसिंग, वॉकिंग, जंपिंग, राइटिंग, रीडिंग, all that is done by the parts of our body. So they are very important. Then I have told you about different parts of our body which are visible, that we can see, like our head, forehead, eyebrows, eyes, nose, mouth, lips, ears, cheeks, neck, shoulders, arms, elbow, wrist, fingers, then chest, belly, waist, leg. Then leg has different parts like thighs, knees, foot, heel, ankle, toes. All these are parts of our body. ये सारे हमारे बॉडी के parts हैं, and all these are external parts, external organs. They are called external organs because they are outside. We can see them. इन body parts को हम देख सकते हैं. External parts, the parts which are
outside of our body. The parts which are outside of our body, मतलब हमारी बॉडी के जो बाहर है, जो हमें दिखते हैं. द पार्ट्स दैट वी कैन सी, जो भी बॉडी पार्ट्स हम देख सकते हैं, वी कैन सी दीज ऑर्गन्स. जैसे कि हैंड है, आईज है, नोज है, लिप्स है, लेग्स है, फीट, एंकल. दीज आर ऑल एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स बिकॉज वी कैन सी देम. ठीक है, वी कैन सी दीज ऑर्गन्स. इन ऑर्गन्स को हम देख सकते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के आउटसाइड होते हैं, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स. तो यहां तक मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में समझाया था. आज मैं आपको बताऊंगी इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में या इंटरनल बॉडी पार्ट्स. Internal organs. Internal. Now, what are internal organs? Children, the part which are inside of our body. The parts which are inside of our body are called internal organs. इनसाइड ऑफ आवर बॉडी मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर है. अब आप सोच रहे हो कि अंदर क्या है? बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो अंदर हैं. इनफैक्ट वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर हमारा एक हाथ नहीं है तो भी हम कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरनल ऑर्गन नहीं होगा तो वी मे नॉट सर्वाइव. हो सकता है कि हम जिंदा ही ना रहें. तो the parts which are inside of our body are called internal organs या internal parts इनको बोलते हैं. और वो कौन कौन से हैं? जैसे कि ब्रेन, ये हेड है, हेड इज देयर, एंड इनसाइड हेड इज ब्रेन. ये जो बाहर है ये हेड हम इसको बोलते हैं. इनफैक्ट इट इज अ स्कल, जो बोन का बना हुआ है, इट इज स्कल, इसको हम स्कल बोलते हैं. और इसके अंदर है ब्रेन जो हमें दिखता नहीं है. बट दिस ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये ब्रेन वर्क नहीं करेगा या नहीं होगा, वी विल नॉट बी एबल टू डू एनी ऑफ आवर वर्क. कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे. तो ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? तो ब्रेन है वो इंटरनल ऑर्गन है. ब्रेन बाहर नहीं दिखता है, वो स्कल के अंदर है. सो ब्रेन है. देन हार्ट, वो जो ठप 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 आवाज आती है ना, लप ठप लप ठप. जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर अंकल स्टेथोस्कोप लेके आपको ऐसे जब यहाँ पर आपका हार्ट बीट चेक करते तो आता है ठक 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 ठक. दैट हार्ट, इट इज इनसाइड योर बॉडी या इनसाइड आवर बॉडी. हमारा हार्ट कहाँ होता है? हमारी बॉडी के अंदर होता है. इट इज इंटरनल ऑर्गन. लंग्स, जैसे सांस लेते हैं तो ये स्वेल हो जाता है ना. हियर वी हैव लंग्स. लंग्स आर ऑल्सो इनसाइड आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर है लंग्स, बाहर दिखते नहीं है, वो बॉडी के अंदर है. बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो क्या इंपॉर्टेंस है? ब्रेन का क्या इंपॉर्टेंस है, हार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, लंग्स का क्या इंपॉर्टेंस है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू ग्रेजुअली. अभी हम सिर्फ ये जानेंगे कि कौन कौन से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं. तो मैंने आपको बताया ब्रेन, लंग्स, हार्ट, देन वी हैव स्टमक. आपको मैंने बताया था ना बेली. बेली ऊपर से जो हमारा पेट है उसको हम बोलते हैं बेली. जो हमको दिखता है, हमारा पेट दिखता है ना, दैट इज कॉल्ड बेली. इसको हम कहते हैं बेली. समझ गए? और बेली के अंदर जिसमें आप खाना खाते हो तो खाना अंदर जाता है. कहाँ जाता है? स्टमक में. यस, स्टमक इज इनसाइड बेली. बेली के अंदर होता है.
समझ गए? समझ गए, है ना? और क्या है इंटरनल ऑर्गन्स? बहुत सारे हैं। इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर है, किडनी है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो बॉडी के अंदर है। दे आर इनसाइड आवर बॉडी, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। द ऑर्गन्स विच आर inside of our body are called internal organs, like brain, heart, lung, kidney, stomach. These are all inside our body and we cannot see them. इसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको देखने के लिए कट करना पड़ेगा। तो क्या आप अपनी बॉडी को कट करके देखोगे? नो। हम इसको देखते हैं, हम वीडियोस में देखते हैं, हम पिक्चर्स में देखते हैं, या जब किसी की डेथ हो जाती है तो जब पोस्टमार्टम होता है उसका, जब बॉडी काट के चेक करते हैं ऑर्गन्स, तब देखते हैं। ये ऑर्गन्स हम अपने खुद के ये ऑर्गन्स हम एक्सरे या जो स्कैनिंग होती है उसमें देख सकते हैं, बट ऐसे हम डायरेक्टली ऐसे करके देख नहीं सकते। ऐसे हम खड़े खड़े अपने इंटरनल ऑर्गन्स को हम देख नहीं सकते। वी कैन नॉट see these organs because they are inside our body, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हैं, इसलिए ये ऑर्गन्स हम देख नहीं सकते। इनकी फोटोज, इनकी पिक्चर्स, इनके वीडियोस, ये सब हम देख सकते हैं। अगर आप कोई एनिमेटेड वीडियो देख रहे हो या कोई सच्ची का वीडियो, किसी का वीडियो बना है, किसी को ऑपरेशन हो रहा है और उसका वीडियो बना है, तो आप उस ऑपरेशन के वीडियो में आप इंटरनल ऑर्गन को देख सकते हो, या जैसा कि मैंने बोला पिक्चर्स में देख सकते हो, या किसी की डेथ हो गई है और उसका पोस्टमार्टम हो रहा है तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स को देखा जा सकता है, बट हम खुद के इंटरनल ऑर्गन्स को वैसे लाइव ऐसे नहीं देख सकते हैं। ठीक, तो मैं अब लिख देती हूँ इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं। द parts of the parts which are, तो थोड़ा और शॉर्ट करके लिख देते हैं, which are the parts which are inside of our body. The parts which are inside of our body are called internal organs or parts. इंटरनल ऑर्गन्स बोल सकते हैं या इंटरनल पार्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। द पार्ट्स विच आर इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, द पार्ट्स विच आर इनसाइड ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनल पार्ट्स। वी कैनॉट सी देम, we cannot see them, इनको हम देख नहीं सकते। ठीक है, we cannot see them, क्यों? because they are inside our body। इसको क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो हमारी बॉडी के इनसाइड है। एग्जाम्पल, ब्रेन, lungs, heart, stomach, kidney, अगेन आप सोचोगे स्टमक तो हम देख पाते हैं, वो स्टमक नहीं होता है। जो हम देखते हैं वो होता है बेली, BELLY, बेली। जो हम देखते हैं तो अपना पेट जिसको हम बोलते हैं, वो पेट क्या है? एक्चुअली वो है बेली। और बेली के
अंदर स्टमक होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप जो खाना खाते हो वो जाता है। ऐसे तो इंटरनल ऑर्गन एक और है, फूड पाइप, जो ये है ना, यहाँ पे आप जब आप टच करोगे, व्हेन यू विल टच हियर यू विल फाइंड समथिंग हार्ड हियर। कम ऑन, टच करके देखो, आप टच करो, देखो यहाँ पर एक ऐसा हार्ड आपको फील होगा। वो क्या है, हमारा फूड पाइप है, इसके अंदर से खाना ऐसे जाता है। साइंस में उसके लिए भी नाम है। जब आप सीनियर क्लास में जाओगे, बड़ी क्लास में जाओगे, जब आप साइंस पढ़ोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं वो सब आप सीखोगे। अभी हम समझ रहे हैं कि वो फूड पाइप है यहाँ पर, ठीक है, ये जो हार्ड सा है। फिर जब आप अपनी पीठ को टच करोगे पीछे, तो वहां भी एक हार्ड ऐसे दिखेगा, वो स्पाइन है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। आप अगर पीछे टच करोगे वहां भी आपको हार्ड ऐसा फील होगा, वो भी इंटरनल ऑर्गन है। जो हमारे बोन्स है, और किसी को अपने बोन्स दिखाई देते हैं क्या? नो। तो वो बोन्स क्या है, दे आर ऑल्सो इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारा पूरा स्केलेटन है वो क्या है, इंटरनली है ना, हमें बाहर से तो दिखता नहीं है। तो जो बोन्स है वो भी इंटरनल ऑर्गन्स ही है, ठीक है। तो उसके अलावा इंटेस्टाइन होता है, हमारे जो बेली के अंदर इंटेस्टाइन्स भी होते हैं। एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, okay, there is a large intestine, there is a small intestine, and all the internal organs have their own function. उन सबका अपना अपना फंक्शन भी होता है, they work. और अगर कोई भी इंटरनल ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन ना करे तो वी मे फॉल सिक, वी मे डेवलप मेनी डिजीजेस। हो सकता है हमें कोई बीमारी हो जाए, हो सकता है कि हम बीमार हो जाएं। दे आर very important. Internal organs are very important, and it is even more important that these internal organs function properly. ये सही से काम करें, क्योंकि ये सही काम करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। अगर एक भी इंटरनल ऑर्गन सही से वो फंक्शन नहीं करेगा तो वी में सफर फ्रॉम सम डिजीज, हो सकता है हमें कोई बीमारी हो जाए। तो दीज इंटरनल ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम एक एक जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। आपके ग्रेड के लेवल से क्लास 2 के लेवल का हम थोड़ा थोड़ा इन इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। Okay. Now, first we'll talk about most important thing, that is brain. Brain is an internal organ and it is inside our head. It is ब्रेन इज इनसाइड आवर हेड। हमारा जो सर है, जिसको हम हेड बोलते हैं, इसके अंदर है। ये जो हेड है, ये जिससे बना हुआ है उसको हम बोलते हैं स्कल। हिंदी में आप बोलते हैं ना खोपड़ी, तो वो स्कल है और इसके अंदर है ब्रेन। एंड दिस ब्रेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है। इट हेल्प्स अस इन थिंकिंग एंड फीलिंग। जो हम सोचते हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, रीडिंग करते हो, जो स्टडी आप करते हो, सोचते हो, जितना भी हम फील करते हैं, ऑल इट इज ड्यू टू ब्रेन।
ब्रेन की वजह से ही आप स्टडी कर पाते हो, आप कुछ सोच पाते हो, आप कुछ कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो. यू अंडरस्टैंड, यू कॉम्प्रिहेंड, यू फील, यू थिंक. ऑल दिस इज डन बाय ब्रेन. ओके, तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हो, जो मैं बता रही हूँ वो आप अगर समझ पा रहे हो, तो इट इज बिकॉज ऑफ ब्रेन. ओके, ये ब्रेन की वजह से है. ठीक है, तो दिस इंटरनल ऑर्गन हेल्प्स अस इन थिंकिंग, इन अंडरस्टैंडिंग, इन कॉम्प्रिहेंडिंग, इन फीलिंग एवरीथिंग. ठीक है, this organ एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर देते हैं, क्योंकि जो आप कैलकुलेशंस करते हो, जो भी आप कि कोई कुछ बोल रहा है और आप उसे समझ पा रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ द ब्रेन. सो दिस ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस ऑर्गन हेल्प्स अस इन थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, और यू से कॉम्प्रिहेंडिंग, फीलिंग एक्सेट्रा. जैसा कि अब इतना कुछ हम नहीं लिख सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जो आप प्लस माइनस वगैरह करते हो, ऑल दैट इज डन बाय ब्रेन. अगर आप कोई कलर भी पहचानते हो कि ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, या आपको कुछ चीजें जो याद रहती हैं, जो आपने लर्न किया है, लर्निंग, वो आप लर्न कर पाते हो, जो आप मेमोराइज कर पाते हो, ऑल दैट इज ड्यू टू ब्रेन. ब्रेन की वजह से आप वो कर पाते हो. अगर आप कोई चीज लर्न करते हो, क्वेश्चन आंसर्स या टेबल्स, जो भी, या आपको कोई पिछली बातें अगर जो याद हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ब्रेन. ब्रेन की वजह से ही ये हो पाता है. ठीक है, सो ये तो हो गया एक जनरल फंक्शन ऑफ ब्रेन. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे ब्रेन का. इट कंट्रोल्स आवर मूवमेंट. अगर हम चल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, इट इज नॉट बिकॉज कि हमारे पैर हैं, हमारे हाथ हैं. ब्रेन कंट्रोल करता है. ब्रेन कहता है चलने के लिए, तभी हम चलते हैं. ब्रेन कहता है बैठो, तो हम बैठते हैं. ठीक है, तो ब्रेन क्या है? इट कंट्रोल्स आवर मूवमेंट. हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है. एंड ऑल वर्किंग ऑफ आवर बॉडी. हमारा जो बॉडी जो भी काम करता है, उसको सबको ब्रेन कंट्रोल करता है. अगर आपका ब्रेन कह रहा है कि ओहो थक गए, अब बैठ जाना चाहिए, तो यू विल सिट. ब्रेन कह रहा है कि टॉक, तो यू विल टॉक. ब्रेन कह रहा है मूव, तो यू विल मूव. इट कंट्रोल्स ऑल द मूवमेंट. जो इवन जो हम ऐसे से आंखें अपनी झपकाते हैं, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल बाय ब्रेन. अगर आपका ब्रेन कह रहा है कि थोड़ी देर ऐसे करके स्टेयर करो, तो यू विल स्टेयर. इट कंट्रोल्स ऑल द मूवमेंट एंड ऑल द वर्किंग ऑफ आवर बॉडी. सो इट इज द लीडर. ब्रेन इज द लीडर ऑफ द बॉडी. इट कंट्रोल्स आवर मूवमेंट, it controls our movement. our movement मतलब जो भी हम चल रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऑल मूवमेंट. इट कंट्रोल्स आवर मूवमेंट. अगर ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करे, तो हम ठीक से चल भी नहीं पाएंगे. ठीक है, सो इट कंट्रोल्स आवर मूवमेंट एंड all working of our body. All working of our
बॉडी। तो समझे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये ब्रेन। अगर ये नहीं होगा तो हमारे कितने काम जो है वो नहीं हो पाएंगे। क्या नहीं हो पाएगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा। वी विल नॉट बी एबल टू डू एनी ऑफ आवर वर्क, और वी विल नॉट बी एबल टू डू एनी ऑफ आवर वर्क प्रॉपरली। ठीक है, तो हम ब्रेन को लीडर भी बोल सकते हैं। हमारी पूरी बॉडी का वो लीडर है। वो सब हमारे बॉडी के, हमारे सारे लिम्स को, सारे ऑर्गन्स को वो कंट्रोल करता है। नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, हार्ट को कंट्रोल नहीं करता है। अब ब्रेन बोलेगा हार्ट को रुक जाओ, तो क्या हार्ट रुक जाएगा? हमारे सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स को वो कंट्रोल करता है ब्रेन। ठीक है, लेकिन हार्ट को नहीं करता है। अगर ब्रेन बोले हार्ट स्टॉप पंपिंग द ब्लड, तो क्या हार्ट रुक जाएगा? नो, इट कैन नॉट कंट्रोल आवर हार्ट। लेकिन बाकी जो हमारे जो भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, ऑल इज कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। ये हो गया ब्रेन के बारे में। आई होप आपको ब्रेन की बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार रीड कर देती हूँ आपके लिए। इट इज इनसाइड आवर हेड। दिस ऑर्गन helps us in thinking, understanding, comprehending, feeling, etc. It controls our movement and all working of our body. Got it? चलिए, तो अब हम चलते हैं दूसरे इंटरनल ऑर्गन की तरफ। दूसरा इंटरनल ऑर्गन हमारा क्या है? स्टमक। ठीक है, स्टमक के बारे में बात करेंगे। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। Okay, this stomach is inside our belly। जैसा मैंने आपको बताया पहले, जो हमारा आउटर जो ये है, इट इज नॉट कॉल्ड स्टमक, इट इज कॉल्ड बेली। जो स्टमक होता है वो बेली के अंदर होता है। स्टमक इज इनसाइड आवर बेली। Stomach is inside our belly, and when we eat food, जब हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, when we eat anything, it goes into stomach. It goes to our stomach through a long pipe। एक लंबी सी पाइप है जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप। मैंने आपको बताया था ना, if you will touch here, you will find something hard। नेक के पास ऐसे करेंगे ना, ऐसे आवाज आती ना, दिस इज फूड पाइप। तो वेन एवर वी ईट समथिंग, वेन एवर वी ईट आवर फूड, और वेन एवर वी ईट एनीथिंग, इट गोज इन टू आवर स्टमक थ्रू अ लॉन्ग पाइप कॉल्ड फूड पाइप। उसको हम कहते हैं फूड पाइप। Whenever we eat anything, I'm not writing food, क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं, जरूरत है ना कि हम फूड ही खा रहे हैं। We may eat chocolate, we may eat chips, we may eat anything। कुछ भी हम खाने की चीज खाते हैं, any eatable। Whenever we eat anything, it goes to our stomach। It goes to our stomach through a long pipe, through a long pipe called
कुछ भी खा रहे हैं, अगर कोई भी चीज हम खाते हैं तो वो फूड पाइप से होते हैं। चबाया, हमने मुंह में डाला खाने की चीज, चबाया, और उसके बाद वो कहाँ जाता है, जब हम स्वॉलो करते हैं तो वो फूड पाइप में जाता है, और फिर फूड पाइप से होते 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 इट रीचेस आवर स्टमक, वो हमारे स्टमक में फिर पहुंच जाता है। ठीक है, और फिर स्टमक क्या करता है, द स्टमक हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट दिस फूड। द स्टमक The stomach helps us to digest this food. जो भी हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में फिर ये स्टमक हेल्प करता है, अकेले नहीं करता है, और भी चीजें होती हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट। इसको हम और थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि किस तरह से स्टमक जो है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। पर आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं। हमने आज ब्रेन के बारे में जाना, इंटरनल ऑर्गन के बारे में जाना, ब्रेन का फंक्शन, स्टमक के बारे में पढ़ा। स्टमक का हम कंटिन्यू करेंगे, और भी बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऑल दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो में जो भी पढ़ाया है उसे रिवाइज कीजिए, एंड डू अटेंड योर ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।